Hello everyone, in the part of video session, this is the third video I am sharing with you of 10th class, and chapter we are learning is life process. So today, in today's lecture, we will talk about the structure of chloroplast and events that occur during the photosynthesis. But before that, let me recall what we have done in our previous lecture. So in the previous lecture, we have talked about the transverse section of leaf, where I have told you that this is the upper epidermis, this one is the lower epidermis, and in between them present the ground tissue, and this ground tissue is divided into two parts. The upper one is palisade and the lower one is spongy. In palisade, the cells are stacked together compactly without any intercellular space. यहाँ कोई intercellular space नहीं है. While in the lower one spongy, the cells are oval in shape and having a lot of intercellular spaces between them. So they are loosely arranged. तो यहाँ पर intercellular space present है. Loose arrangement और shape कैसी है? They are oval to round in shape. Now, if we talk about the photosynthesis, in this process, 6 carbon dioxide combined with 6 molecule of water to form glucose plus oxygen. So from where this raw material is coming? So in this diagram, I have shown you that the CO2 is coming from the atmosphere through the tiny pores which are called stomata. This water is coming through the xylem, and the leaf xylem is connected to the xylem of root. The water is actually coming from the soil, as this root absorbs the water from the soil, and the root having the xylem and phloem vascular bundle. This vascular bundle is connected to the leaf. So in the leaf also, xylem is bringing the water from the root. Now these water and this carbon dioxide, these both raw material combine in a organelle which is known as kitchen of plant cell, and this organelle is called, here I have shown this organelle is called chloroplast. So inside this chloroplast, this reaction take place where the carbon combine with the water in the presence of this sunlight. Fine, and we get the food glucose along with that oxygen. Now, if one question is asked that what is the site of photosynthesis, so actual site photosynthesis हो कहाँ रहा है? इस chloroplast के अंदर. तो site of photosynthesis is chloroplast inside. अब ये chloroplast है कहाँ पर? स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यू में, और ये दोनों को हम मिलाकर क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड टिश्यू, और लीफ का ग्राउंड टिश्यू का नाम क्या होता है? मेसोफिल. So this photosynthesis is actually taking place in the mesophyll cell, or we can say in the chloroplast of mesophyll cell. In the chloroplast of this mesophyll cell. Fine. So this is what we have done in the previous lecture. Now today, as we know that the photosynthesis reaction taking place in the chloroplast, so we must know how chloroplast look like. So this is the structure of chloroplast. In your lower classes like 9th, you have learned about the structure earlier, that chloroplast having two membrane. The outer one is called outer membrane and inside one is called inner membrane. Along with that, it have a matrix of fluid inside it, and that matrix is called stroma, with some granule-like structure called ribosome and its own DNA, because chloroplast is semi-autonomous organelle having their own chloroplast. So this is a chloroplast DNA. And now come to the point. Inside this chloroplast, some plates are arranged over each other. So this is a single plate. Here the single plate which I have shown through this dark color, this single plate is called thylakoid, and these thylakoids are arranged over one another and form a single structure called grana. तो एक प्लेट को आप कह रहे हो thylakoid, और बहुत सारी प्लेट एक दूसरे के ऊपर अरेंज, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम? ग्रेना. Now inside this chloroplast, these grana are many in number and they are connected to each other. बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं और एक दूसरे से connected होते हैं, and they are connected through a structure called stroma lamellae. Stroma हम term कह रहे हैं because this structure is present in the chloroplast matrix, और lamellae term कहीं पर भी plate जैसी structure हो तो उसे lamellae भी बोल सकते हैं. So these grana are connected through stroma
stromal lamellae. Fine. And this is the structure of chloroplast, where actually the photosynthesis is going to take place. Now, the photosynthetic reaction is divided into two parts. The one is called light reaction and second is called dark reaction. And what is this light and dark reaction and where it is taking place? So this light reaction is light driven reaction, means यहाँ पर light का होना जरूरी है. It is light driven reaction, or we can say light requiring reaction, which is taking place inside this thylakoid, or we can say grana. Light reaction आपका कहाँ हो रहा है? Inside the thylakoid. Thylakoid is the site of reaction. Fine. तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? थैलाकॉइड के अंदर. और यहाँ पर जरूरत किसकी है? लाइट की है. लाइट रिएक्शन में होता क्या है? नेक्स्ट पॉइंट. In the presence of light, what is actually happening? It is responsible for photolysis of water molecule. Photo मतलब होता है light. Lysis means breakdown. Light की presence में breakdown होगा किसका? Water का. And as the water breakdowns, what is going to form? As the water, this is sunlight. Light के presence में हम कह रहे हैं sunlight के presence में water molecule break होगा and it form 2 proton plus half molecule of oxygen plus 2 electron. Right? So this is the reaction. And हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लिबरेट हो रहा है. सो हमने यहाँ बात की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या था? 6 मॉलिक्यूल कार्बन के कंबाइन कर रहे थे विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड क्या फॉर्म कर रहे थे? C6H12O6 अलोंग विद ऑक्सीजन, है ना. सो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म हो रही है, वो ऑक्सीजन आई कहाँ से है? वो इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से आई है. किससे आई है? वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से आई है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड dark reaction. Okay. What is happening in dark reaction? Light reaction में 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं. एक तो ये लाइट ड्राइवन है कि लाइट रिक्वायरिंग है. थैलाकॉइड के अंदर आपका रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन में हो क्या रहा है? वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है या फिर हम कहें लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है. एंड इन दिस लाइट रिएक्शन वन मोर थिंग इज हैपनिंग हियर, द formation of एनर्जी मॉलिक्यूल. और प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी होता है. सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में आपका क्या क्या होगा? नाउ कमिंग टू डार्क फेज, एज द नेम सजेस्ट इट इज डार्क रिएक्शन. डार्क का मतलब ये नहीं है कि ये आपके दिन के टाइम में जब लाइट प्रेजेंट होगी उस टाइम पर ये रिएक्शन हेल्ड नहीं होगी. डार्क का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके लिए लाइट होना जरूरी नहीं है. लाइट है अच्छी बात है, तब भी ये रिएक्शन चल रही होगी, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन कि यहाँ पर लाइट होना जरूरी है कि ये रिएक्शन आपकी रात को भी चलती है. डार्क रिएक्शन में जो रिएक्शन होगी वो रात को भी चलेगी, बट लाइट रिएक्शन में जो स्प्लिटिंग होगी वाटर की वो लाइट के प्रेजेंस में ही होगी, यानी कि डे टाइम में. रात में ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, तो उस टाइम पर आपका लाइट रिएक्शन ज्यादा हेल्ड नहीं कर रही होती है. इट इज जस्ट नेग्लिजिबल इन काउंट. डार्क रिएक्शन में होगा क्या? द एनर्जी मॉलिक्यूल formed during light reaction is used to convert
CO2 into to convert CO2 into ग्लूकोज. और वी कैन से सिंपली कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है. दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. कि कार्बन किस में फिक्स हो रही है, ग्लूकोज में फिक्स हो रही है. या फिर हम कहें कि कार्बन ग्लूकोज में रिड्यूस हो रही. तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक है कि एनर्जी मॉलिक्यूल को हम कार्बन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है. अगर आपको कहीं स्टेटमेंट लिखी दिखे कि यहाँ फिक्सेशन हो रहा है कार्बन का इनटू ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. एंड इफ यू फाउंड समवेयर कि यहाँ पर CO2 रिड्यूस हो रहा है इनटू कार्बोहाइड्रेट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. फाइन. सो यहाँ पर आपका डार्क रिएक्शन के अंदर हुआ. अब ये डार्क रिएक्शन हो कहाँ रही है, साइट. इफ यू टॉक अबाउट साइट, तो इट इज अकरिंग इन द स्ट्रोमा ऑफ chloroplast. Fine. So if I'll have to show in this diagram, तो यहाँ पर हो रही होगी आपकी डार्क रिएक्शन और इस थैलाकॉइड के अंदर हो रही होगी आपकी लाइट रिएक्शन. सो लाइट रिएक्शन मीन्स हेल्ड हो रही है यहाँ पर, जहां पर एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म होगी एंड इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फाइन. सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द steps that are taking place in photosynthesis. Now if the question come that what are the steps or events that are occurring in photosynthesis, the first point क्या है, sunlight is trapped by. अब पूरा प्रोसेस हम रिकॉल कर रहे हैं. सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय, सनलाइट को ट्रैप करता है ग्रीन पिगमेंट और उसके अलावा भी जो भी पिगमेंट है प्लांट में. तो सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल एंड अदर accessory पिगमेंट्स. ठीक है. तो यहाँ पर सनलाइट यानी रेडिएंट एनर्जी को यूज कर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप किया जा रहा है. देन सेकेंड प्रोसेस क्या हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, फोटोलाइसिस हो रही है इन और बाय रेडिएंट यानी सनलाइट के द्वारा रेडिएंट एनर्जी और हो कहाँ रही है, इनसाइड थाइलाकॉइड. फाइन. थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो रेडिएंट एनर्जी यानी सनलाइट ट्रैप हुई थी क्लोरोफिल ने, उसने क्या किया, यहाँ पर आपका फोटोलाइसिस किया यानी वाटर को स्प्लिट किया. थर्ड स्टेप में क्या होगा, एनर्जी formed during लाइट रिएक्शन, एनर्जी जो लाइट रिएक्शन के टाइम पर फॉर्म हुई इज यूटिलाइज्ड फॉर रिड्यूसिंग. उसे यूज कर क्या किया जा रहा है, फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड into carbohydrate. Means the radiant energy, क्योंकि अभी तक सनलाइट एनर्जी की बात करते, रेडिएंट एनर्जी इज नाउ कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में. एंड द लास्ट स्टेप इज release of
oxygen as product. So this is actually what is taking place in reaction of photosynthesis. One more point you can add on कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती है. कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स. इफ यू हैव हर्ड दिस टर्म, रेडॉक्स इज अ रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो. ऑक्सीडेशन सिंपली हम कहते हैं ऑक्सीजन ऐड होना. तो यहाँ पर अगर हम देखें ये रिएक्टेंट साइड था, दिस इज द प्रोडक्ट साइड. तो वाटर से ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एनवायरमेंट में. सो ये आपका क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा कि ये स्टेप क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर आपका दूसरा प्रोसेस क्या है? दैट इज दिस वन, where the carbon dioxide is converting into carbohydrate. In this process, what is going on here? Reduction is taking place. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन के अंदर आपका ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा. बट यहाँ पर आपको ऑपोजिट दिख रहा है रिएक्शन में यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के केस में बात करते हैं. बच्चा ये डायरेक्ट मत देखना कि यहाँ पर आपका O है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी तो ऐड ही हुआ है. तो ये जो रिएक्शन है आपको जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, उससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और कार्बन का क्या होता है? रिडक्शन होता है. सो दिस इज द ओवरऑल लेक्चर फॉर टुडे. In the next class, we'll talk about एक और छोटा सा टॉपिक. चलो छोड़ो. In the next class, we'll talk. बच्चे, in this photosynthetic reaction, actually we are calling it redox reaction on the basis of hydrogen addition and removal. redox reaction आप ऑक्सीजन के एस्पेक्ट में भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में भी बता सकते हैं और हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में भी बता सकते हैं. सो हेयर यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ देखिए वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है प्रोडक्ट साइड पर और खाली ऑक्सीजन हमें मिला. एंड तो ये प्रोसेस आपकी क्या होगी? यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड कार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है. सो दिस इज योर reduction. This is how the photosynthetic reaction is a redox reaction. Okay, please rectify this one. Thank you so much.